Hi, this is Sunil Mishra from Success Series. This is the part 2 of chapter 3, pair of linear equations in two variables. Topics to be covered in this video: graphical method of solution of a pair of linear equations and exercise 3.2. ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब तक हमने सीखा कैसे हम लीनियर इक्वेशंस के पेयर को ग्राफिकली टू लाइंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम दो लाइंस को किसी प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस केस में आपकी थ्री पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी होगी कि दो लाइंस किसी एक पॉइंट में मिले, तो उन लाइंस को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर दो लाइंस कभी आपस में नहीं मिलेंगी तो वो पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। अगर दो लाइंस एक से ज्यादा पॉइंट में मिल रही हैं तो उन लाइंस को हम कहेंगे कोइंसाइडिंग लाइंस या फिर ओवरलैपिंग लाइंस। We have shown all three possibilities in the figure 3.1. In this case, these two lines are intersecting at exactly one point, and in this case, these two lines will never intersect each other, so we can say that these lines are parallel. And in this case, these two lines are intersect at infinite points. Okay, so we can say that these lines are coinciding or overlapping lines. तो जिस पॉइंट में दो लाइंस मिलती है वह पॉइंट जो है दोनों लाइंस की इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन होता है। सो इस केस में इन दोनों लाइंस की इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा बिकॉज दे आर इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। अगर इस केस की बात करें, ये दोनों लाइंस कभी आपस में नहीं मिलेंगी, सो इन दोनों लाइंस की इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। एंड अगर हम थर्ड केस की बात करें तो इस केस में ये दो लाइंस इनफिनाइट पॉइंट्स में मिल रही हैं, तो इन दोनों लाइंस के इक्वेशंस के इनफिनाइट सॉल्यूशंस होंगे। अब हम सीखेंगे कैसे हम दो इक्वेशंस को बिना ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए पता लगाएंगे कि दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या फिर ओवरलैपिंग होगी। So first of all, we should know what is the standard form of a pair of linear equation in two variable. So it's a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. And our second equation is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Here a1 is a coefficient of x and b1 is a coefficient of y and c is a constant term. Similarly, a2 is a coefficient of x in the second equation and b2 is a coefficient of y in the second equation and c2 is constant term. So first of all, we'll find the coefficient of x for this equation. So here the coefficient of x is 1. इस केस में coefficient of x क्या है? 1 है। Upon इस second case में आप देखेंगे what is the coefficient of x here? 3. So we'll find a1 upon a2. It's 1 by 3. 1 upon 3. Now we'll find b1 upon b2. So we'll find the coefficient of y in the first equation. It's minus 2. And we'll find the coefficient of y the second equation. It's 4. So minus 2 upon 4. We notice that a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. So these lines are intersecting lines. If a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then it represents intersecting lines. So in case of intersecting lines, we have exactly one solution, or you can say a unique solution. Now in the second case, we'll find a1 upon a2. So coefficient of x in the first equation is 2 and coefficient of x in the second equation is 4. So a1 upon a2 will be 2 upon 4. The first equation coefficient of y is 3 and in this case coefficient of y is 6. So 3 upon 6 and now we'll find c1 upon c2. So in this case constant term is minus 9 upon minus 18. We have noticed that this gives 1 by 2 and this is also 1 by 2. 3 1s are 3, 3 2s are 6 and minus will be cancelled out and it also gives 1 by 2. So a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. If the coefficient of x in both the equation is equal to coefficient of y in both the equation and the coefficient of c in both the equations are equal, so they are coinciding lines or overlapping lines. So in case of overlapping lines, they are meeting at more infinite points, so they have infinite many solutions. Now in the case third, we'll find
the coefficient of x in the first equation, which is 1, and here the coefficient of x is 2, so it gives 1 by 2. And now coefficient of y in the first equation is 2, and coefficient of y in the second equation is 4, so it gives 2 by 4. And the constant term in the first equation is minus 4, and here the constant term in the second equation is minus 12. So what it gives, this is 1 by 2, it also gives 1 by 2, but in this case it gives 1 by 3. Minus and minus will be cancelled out, 4 3s are 12. So we have noticed that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but they are not equal to c1 upon c2. In this case they represent parallel lines, and in case of parallel lines we do not have any solution. From the previous table, we observed that if the ratio of coefficient of x is not equal to the ratio of coefficient of y, in that case they represent intersecting lines, and if the ratio of coefficient of x is equal to the ratio of coefficient of y is equal to the ratio of constant term, in that case they represent overlapping lines, or we can say that they are coincident. And if the ratio of coefficient of x is equal to the ratio of coefficient of y, but it is not equal to the ratio of constant terms, in that case they represent parallel lines, and in case of parallel lines we do not have any solution. Now let us start exercise 3.2. Question number first. Form a pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. This is part 1 of question number first. 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. देखिए क्लास 10th के 10 बच्चों ने एक मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट किया. अगर गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से 4 ज़्यादा है, if number of girls is 4 more than number of boys, we have to find the number of boys and girls who took part in the quiz. Let number of girls be x and number of boys be y. In case first, there are total 10 students. That means number of girls, which is x, plus number of boys, which is y. This is equal to 10. This is our first equation. तो second case में क्या रहा है यहाँ पे, girls is 4 more than number of boys. Girls जो है boys से 4 ज़्यादा है. इसका meaning ये हुआ number of girls, which is x. This is 4 more than number of boys. This is equal to y plus 4. This is our second equation. Now we have to draw two separate tables for equation 1 and as well as equation second. मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दी है. अब देखिए आप जो पहली इक्वेशन है इससे x या y चूज करके उसकी वैल्यू फाइंड करें. तो अगर पहली इक्वेशन में मैं यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 10 माइनस 1. x की वैल्यू इस केस में आएगी आपकी 9. तो y की वैल्यू 1 रखने पे, y यहाँ पे 1 रखा, y इज इक्वल टू 1 रखने पे x की वैल्यू आ रही है आपकी 9. y और y इज इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ x इज 9. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू रखता हूँ 5, अगर मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 5 रख दी, उस केस में x की वैल्यू भी आपकी 5 होगी. 10 माइनस 5 गिव्स 5. तो y की वैल्यू 5 रखने पे x की वैल्यू भी 5 आ रही है. अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू रखता हूँ 2, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखता हूँ, उस केस में x की वैल्यू आएगी आपकी 10 minus 2, which is 8. So it gives value of x 8. On putting value of y is equal to, it gives value of x 8. Now we will draw the table for equation second. हम second equation के लिए table draw करेंगे, ठीक है. अगर मैं second equation में y की वैल्यू 1 रखता हूँ, इस केस में y की वैल्यू 1 रखनी है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 plus 4 5. तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखने पे x की वैल्यू आएगी आपकी 5. एंड अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखता हूँ तो उस केस में आपकी x की वैल्यू आएगी 2 plus 4, which is 6. इफ आई पुट वैल्यू ऑफ y 0, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो उस केस में यहाँ पे x की वैल्यू आएगी आपकी 4. देखिए 2 वैल्यू मोर देन सफिशिएंट होता है, बट वी फाइंड द थर्ड वैल्यू फॉर आवर रेफरेंस. तो थर्ड वैल्यू हम रेफरेंस के लिए फाइंड करते हैं. वैसे 2 वैल्यूज मोर देन सफिशिएंट है टू ड्रॉ अ लाइन.
Now we will graphically represent these two equations on the second slide. Now हम दोनों इक्वेशन में 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे. So I have drawn a table here. अगर इस इक्वेशन में फर्स्ट वाली इक्वेशन में y की वैल्यू में 1 रखूंगा यहाँ पे, तो उस केस में x की वैल्यू क्या आएगी 10 माइनस 1 विच इज 9. अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू मैंने 5 रख दी, इफ आई पुट y इज इक्वल टू 5 हियर, तो उस केस में 10 माइनस 5, x की वैल्यू भी 5 आ जाएगी. 10 माइनस 5 5, तो x की वैल्यू भी 5 आ जाएगी. इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 2 रख देता हूँ, तो उस केस में x की वैल्यू आएगी 10 माइनस 2 विच इज 8. तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए. वैसे तो 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं, बट हम थर्ड जो पॉइंट है अपने रेफरेंस के लिए लेते हैं, चेक करने के. इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन में भी 3 पॉइंट से कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे. तो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो उस केस में x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 1 प्लस 4 विच इज 5. अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखता हूँ सेकंड इक्वेशन में, सो 2 प्लस 4, x की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी ना. अगर मैं सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रखता हूँ, यहाँ पे अगर 0 जाता है तो 0 प्लस 4 गिव्स 4, तो x की वैल्यू 4 आएगी. अब इन पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 ग्राफ में प्लॉट करेंगे. फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1, 9. तो x इज 1, x1 यहाँ पे होगा, x एक्सिस में 1 यहाँ पे है, एंड y इज 9. तो दिस पॉइंट इज हियर. तो इस पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे. तो सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 5, 5, x इज 5, y इज 5. तो 5, 5 आपका आएगा यहाँ पे. x इज 5 हियर, x आपका 5 यहाँ पे है, और फिर 5 स्टेप्स आप ऊपर जाएंगे, तो 5, 5 लाइज हियर. 5 एंड 5. इस पॉइंट को भी आप यहाँ पे मार्क कर लेंगे. 5, 5. आपका जो थर्ड पॉइंट है x is 8 and y is 2. x is 8 here and y is 2 this here. इस पॉइंट को भी आप मार्क कर लेंगे 8, 2. नाउ वी ड्रॉ अ लाइन joining all these 3 points. तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. तो दिस लाइन रिप्रेजेंट द फर्स्ट इक्वेशन. तो ये जो लाइन है आपकी, ये फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है. इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन के जो पॉइंट्स है इसको हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे. तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में x इज 5 एंड y इज 1. तो x की वैल्यू 5 है और y आपका 1 है. तो दिस पॉइंट लाइज हियर. इस पॉइंट को हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे 5, 1. देखिए सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x इज 6, y इज 2. x आपका 6 है, x इज 6 है, x आपका 6 यहाँ पे है एंड 2 यहाँ पे. तो इस पॉइंट को भी आप मार्क कर लेंगे. दिस इज 6, 2. एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ पॉइंट. तो फोर्थ पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4, 0. x है आपका 4 एंड y 0. तो 4, 0 आपका ये पॉइंट होगा. इस पॉइंट को आप मार्क कर लेंगे. तो दिस इज 4, 0. ये आपका 4, 0. नाउ हमें यहाँ पे तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे. तो दिस लाइन रिप्रेजेंट द सेकंड इक्वेशन. तो ये लाइन आपकी सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है. और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इसका सॉल्यूशन होगा. तो ये दोनों लाइंस कहाँ पे मिल रही है? दे आर इंटरसेक्टिंग एट 7, 3. तो 7, 3 पे मिल रही है. तो 7, 3 इसका सॉल्यूशन होगा. दैट मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी आपकी 7, x की वैल्यू होगी आपकी 7 एंड y की वैल्यू होगी आपकी 3. नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 7 है एंड बॉयज आपके 3 है. This is the second part of question number first. 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. देखिए 5 pencils and 7 pens की together cost है 50 rupees and 7 pencils और 5 pen की दोनों की together cost है 46. आपको बताना है कि एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट क्या होगी. ठीक है, तो मान लीजिए एक पेंसिल की कॉस्ट है x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन b रुपीज y. सो यहाँ पे 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी 5x. ठीक है, एक पेंसिल की कॉस्ट है x, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट होगी 5x प्लस 7 पेन की कॉस्ट. तो एक पेन की कॉस्ट है आपकी y रुपीज, 7 पेन की कॉस्ट होगी 7y. इन दोनों की मिला के जो टोटल कॉस्ट है 50 रुपीज. तो दिस इज इक्वल टू 50. तो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है. इसी तरीके से आप सेकंड इक्वेशन भी फॉर्म करेंगे. सो सेकंड इक्वेशन मैं यहाँ कर रहा हूँ. सेकंड इक्वेशन में अगर देखें यहाँ पे 7 पेंसिल 5 पेन्स एंड 7 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट 46.
तो 7 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी 7x, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज रुपीज। यहाँ पे एक पेंसिल की कॉस्ट क्या है x रुपीज, तो 7 पेंसिल की कॉस्ट होगी 7x। एंड द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स, 5 पेन की कॉस्ट कितनी होगी 5y। और इन दोनों की जो टोटल कॉस्ट है, इनकी टोटल जो कॉस्ट है वो आपकी 46 रुपीज। तो दिस इज इक्वल टू 46। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर दैट वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। तो हम पॉइंट से कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। वी हैव टू फाइंड 3 पॉइंट्स फॉर बोथ द इक्वेशंस। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x, okay, and y is equal to 50 minus 5x upon 7, okay. Now we'll draw a table. आप यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करेंगे। अगर आप यहाँ पे इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखते हैं 3, तो x की वैल्यू 3 रखने में y की वैल्यू क्या आएगी, तो रख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 50 माइनस 5 इंटू 3 अपॉन 7, इसको सॉल्व करेंगे तो इट गिव्स 50 माइनस 15 अपॉन 7, दिस गिव्स 35 अपॉन 7 एंड वी नो दैट 7 5 to 35। आपने यहाँ पे x की वैल्यू रखी 3, आपने x की वैल्यू 3 रखी, तो y की वैल्यू है आपकी यहाँ पे 5। तो x की वैल्यू 3 रखने में y की वैल्यू आ रही है 5। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 10 रखते हैं, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 10 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, लेट्स चेक। तो x की वैल्यू आपने 10 रखी, तो 5 इंटू 10, 5 into 10 gives 50, 50 minus 50 gives 0 upon 7 and 0 upon 7 is 0. So x की वैल्यू 10 रखने पे y की वैल्यू आ रही है आपकी 0। नाउ अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू रखते हो -4, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू -4 रखोगे, देन y की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू -4 रखा आपने, -4 एंड -5 into -4 gives +20, 50 plus 20 gives 70 and 70 upon 7 gives 10। ओके, सो x की वैल्यू आपकी -4 रखने पे y की वैल्यू आ रही है आपकी 10। तो इस तरीके से आपने इस इक्वेशन के लिए 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। नाउ आप सेकंड इक्वेशन से कोई भी एक वेरिएबल चूज करेंगे और उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं x को चूज करता हूँ और मैं x की वैल्यू y के टर्म्स में फाइंड करूंगा। तो फॉर दैट आप क्या करेंगे, आप 5y को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड, तो 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y। So this gives x is equal to 46 minus 5y upon 7. Now again you have to draw a table. देखिए यहाँ पे अगर आप y की वैल्यू रखते हो -2, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू -2 रखता हूँ, x की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। y की वैल्यू -2 रखने पे x की वैल्यू क्या आती है, तो चेक करते हैं। तो इट गिव्स, इफ आई पुट y इज इक्वल टू -2, अगर मैंने y की वैल्यू -2 रखी, 46 minus 5 into -2 upon 7. So -2 and -5 gives +10, 46 plus 10 upon 7, and this gives 56 upon 7, and we know that 7 8s are 56. तो -2 रखने पे y की वैल्यू, x की वैल्यू आ रही है आपकी 8। अगर यहाँ पे आप y की वैल्यू रखते हो 5, अगर मैं यहाँ y की वैल्यू 5 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, चेक करते हैं। तो y की वैल्यू मैंने रखी यहाँ पे 5, तो 5 into 5, 5 5 से 25, 25, 46 minus 25 gives 21, and 21 upon 7, 21 upon 7 gives 3, so this gives 3। अगर आपने यहाँ पे y की वैल्यू रखी 5, उस केस में आपकी x की वैल्यू आ रही है 3। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में y की वैल्यू रखोगे, थर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड पॉइंट में अगर y की वैल्यू आप 12 रखोगे, तो उस केस में x की वैल्यू क्या आएगी। अगर आपने यहाँ पे y की वैल्यू 12 रखी, अगर आप y की वैल्यू यहाँ 12 रखते हो, तो यहाँ पे 5 इंटू 12, 12 5 से 60, 8 gives 60, 46 minus 60 gives -14 upon 7, नेट गिव्स वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी -2। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे y की वैल्यू 12 रखी, तो उस केस में x की वैल्यू आ रही है आपकी -2। तो नाउ अब इन पॉइंट्स को आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे। Now question number second, on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2
find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident. So आपको दोनों ही इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट का रेशियो, y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो एंड कॉन्स्टेंट टर्म का रेशियो कंपेयर करना है और बताना है कि जो लाइंस हैं जो इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं वो किसी पॉइंट पे मिलेंगी, दैट मीन्स वो इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग होगी. This is the first part of question number second. 5x minus 4y plus 8 is equal to 0 and 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. So first of all we'll find the ratio of coefficient of x. So आप x के coefficients का ratio find करेंगे. That means आपको a1 upon a2 find करना है. So a1 upon a2. Coefficient of x in the first equation is 5 and coefficient of x in the second equation is 7. It gives 5 by 7. Now we'll find b1 upon b2 means coefficient of y in both the equation. So here the coefficient of y in the first equation is minus 4 and here the coefficient of y in the second equation is 6. So this gives minus 2 upon 3. तो हमने यहाँ पे ये नोटिस किया कि a1 upon a2 b1 upon b2 के इक्वल नहीं है, ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं. a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 और हमें पता है अगर a1 upon a2 और b1 upon b2 बराबर नहीं आते उस केस में जो लाइंस होती हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं. So this means that lines are intersecting at one point. If two lines are intersecting at one point, that means they have one point of intersection and the point of intersection is the solution. So this gives exactly one solution. तो इस केस में exactly one solution या फिर आप कह सकते हो इन दोनों equations का unique solution होगा. Now second part of question number second. 9x plus 3y plus 12 is equal to 0 and 18x plus 6y plus 24 is equal to 0. So first of all we will find a1 upon a2, that means coefficient of x in both the equations. So यहाँ पे आपका x का कोएफिशिएंट है 9 और सेकंड वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 18. So 9 upon 18 को सॉल्व करेंगे, it gives 1 by 2. Similarly अब फाइंड करेंगे यहाँ पे b1 upon b2, that means ratio of the coefficient of y in both the equations. तो इस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है आपका 3 और सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है 6. तो इसका आपने रेशियो फाइंड किया, इट आल्सो गिव्स 1 by 2. नाउ अब आप फाइंड करेंगे रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म इन बोथ द इक्वेशंस. सो c1 upon c2, here 12 upon, in this equation the constant term is 24, so it also gives 1 by 2. so हमने ये फाइंड किया कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and it is equal to c1 upon c2. In this case they are representing coincident lines. So यहाँ पे ये coincident या overlapping lines represent कर रही है. तो coincident और overlapping lines जो हैं वो infinite points मिलती हैं. So इस केस में we have infinitely many solutions. तो इसमें बहुत सारे आपके solutions होंगे. Now third part of question number second. 6x minus 3y plus 10 is equal to 0 and 2x minus y plus 9 is equal to 0. So we'll find the coefficient of x in both the equation. So a1 upon a2 find करेंगे हम. a1 upon a2 in this equation the coefficient of x is 6. So 6 upon 2. So 6 upon 2 gives 3 upon 1. Now b1 upon b2. b1 upon b2 find करेंगे. इस इक्वेशन में जो b1 है वो है आपका -3 और सेकेंड वाली इक्वेशन में जो आपका b2 है वो है आपका -1. इसको आपने सॉल्व किया, इट आल्सो गिव्स 3 upon 1. नाउ वील फाइंड c1 upon c2, दैट मीन्स रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म्स. इस इक्वेशन में आपका कांस्टेंट टर्म है 10 और इस वाली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है 9. तो आपने ये नोटिस किया कि a1 upon a2 तो बराबर आ रहा है b1 upon b2 के, बट ये c1 upon c2 के इक्वल नहीं है. इस केस में दे आर रिप्रेजेंटिंग पैरेलल लाइंस, तो ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे. तो हमें पता है कि पैरेलल लाइंस जो होती है वो कभी नहीं मिलती आपस में. सो लाइन अगर मिलेंगी नहीं तो सॉल्यूशन कैसे होगा? तो पैरेलल लाइंस के केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता. इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस वी हैव नो सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 3. ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations
आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो आपको एक्स के कोएफिशिएंट्स का रेशियो, वाई के कोएफिशिएंट्स का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो कंपेयर करना है और बताना है कि जो लीनियर इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, वो आपकी कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। तो हमें पता है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो आपकी कंसिस्टेंट किस केस में होती है, अगर लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग होगी या फिर कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइंस आपकी कंसिस्टेंट होती हैं, वेयरएस इनकंसिस्टेंट लाइन जो होती है पैरेलल लाइंस को हम कहते हैं। देखिए कंसिस्टेंट लाइन कब होती है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट कब होती हैं, जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी या फिर ओवरलैपिंग होंगी। और लाइंस इनकंसिस्टेंट कब होगी, जब लाइंस पैरेलल होंगी। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो पैरेलल लाइंस के केस में सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, वेयरएज इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन तो सॉल्यूशन देती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में वी हैव अ यूनिक सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइंस या ओवरलैपिंग लाइंस पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। So this is the first part of question number third. 3x plus 2y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 7. So first of all we will find a1 upon a2. So the a1 upon a2, that means coefficient of x is here 3 and coefficient of x in the second equation is 2. It gives 3 by 2. Now we will find b1 upon b2. Coefficient of y in the first equation is 2 and coefficient of y in the second equation is minus 3. तो वी आर फाइंड दैट हमने ये नोटिस कर रहे हैं कि a1 अपॉन a2 जो है वो बराबर नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के। जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होता, उस केस में जो लाइंस होती हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और इंटरसेक्टिंग लाइंस आपकी कंसिस्टेंट होती हैं। तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन दिस केस इज कंसिस्टेंट। ओके, so this is the part second of question number third. 2x minus 3y is equal to 8 and 4x minus 6y is equal to 9. So first of all we will find the ratio of the coefficient of x, that is a1 upon a2. In first equation the coefficient of x is 2 and in the second equation the coefficient of x is 4. तो सॉल्व किया आपने 1/2 आया। फिर अब क्या करेंगे, आप b1 upon b2 फाइंड करेंगे। तो पहली वाली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है -3 और दूसरी वाली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है आपका -6। तो दिस ऑल्सो गिव्स 1/2, ठीक है। एंड आप फाइंड करेंगे c1 अपॉन c2। तो c1 अपॉन c2 हमने फाइंड किया तो यहाँ पे आया आपका 8 अपॉन 9। तो आपने ये नोटिस किया कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों ही 1/2 आ रहे हैं, बट c1 अपॉन c2 आ रहा है 8/9। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये जो कंडीशन होती है ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है। तो दोनों ही इक्वेशंस जो हैं आपकी पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। तो पैरेलल लाइंस के केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि लाइंस तो मिलती नहीं है, तो सॉल्यूशन कहाँ से होगा। सो जो आपकी पैरेलल लाइंस होती हैं वो आपकी इनकंसिस्टेंट होती है। So therefore in this case the pair of linear equation is inconsistent. Now this is the part third of question number third. 3 by 2x plus 5 by 3y is equal to 7 and 9x minus 10y is equal to 14. So first of all we will find the ratio of coefficient of x, that means a1 upon a2. So यहाँ पे a1 है आपका 3 upon 2 और यहाँ पे a2 है 9। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस गिव्स 3 2 into 9। ओके, सो ये जो 9 है ये आपका 2 के साथ मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सो दिस गिव्स 1 upon 6। नाउ वी विल फाइंड b1 upon b2। हम y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो फाइंड करेंगे। सो b1 है, पहले वाली इक्वेशन में b1 जो है आपका वो है आपका 5/3। तो b1 है आपका 5/3, 5/3 एंड आपका b2 है -10। तो सेम ऐसा होगा यहाँ पे भी, ये 10 जो है आपका 3 के साथ जाएगा। सो दिस गिव्स 5 upon 3 into -10, दिस इज -10। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, -2 आएगा। दिस गिव्स 1 upon -6। हमने ये नोटिस किया कि a1 upon a2 जो है वो आ रहा है आपका 1/6, बट b1 upon b2 जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 1 upon -6। तो a1 upon a2 b1 upon b2 के इक्वल नहीं है,
इस केस में जो लाइंस होती हैं वो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और इंटरसेक्टिंग लाइंस का सॉल्यूशन होता है, इसलिए ये कंसिस्टेंट होंगी। तो दे आर रिप्रेजेंटिंग intersecting lines have unique solution, तो unique solutions के केस में जो लाइंस होगी वो आपकी कंसिस्टेंट होगी, they are representing consistent pair of lines. This is the fourth part of question number third. 5x minus 3y is equal to 11 and minus 10x plus 6y is equal to minus 22. So first of all we will find the ratio of coefficient of x in both the equations, that means a1 upon a2. So the coefficient of x in first equation is 5 and the coefficient of x in second equation is minus 10. So on simplifying it gives minus 1 by 2. Now we will find the ratio of coefficient of y in both the equation, that means b1 upon b2. तो पहली वाली इक्वेशन में आपका y का कोएफिशिएंट है -3 और सेकंड वाली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट आपका 6. इसको भी सिंप्लीफाई करने पे इसका जो आएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म वो आएगा आपका 1 by 2. And then we will find the ratio of constant term, that means c1 upon c2. तो constant term फर्स्ट इक्वेशन में है आपकी 11 और सेकंड इक्वेशन में constant term है -22. So 11 1 11, 11 2 22. It also gives -1 by 2. यहाँ पे a1 upon a2 का रेशियो बराबर है b1 upon b2 के रेशियो के, एंड ये जो इक्वल है ये आपके c1 और c2 के रेशियो के बराबर है. So in this case they are representing coincident lines or we can say overlapping lines. So coincident lines के केस में infinite solutions होते हैं, so that means the pair of linear equation is consistent. This is the fifth part of question number third. 4 by 3x plus y is equal to 8 and 2x plus 3y is equal to 12. So first of all we will find the ratio of coefficient of x, that means a1 upon a2. तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है आपका 4 by 3 एंड सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है आपका 2. इसको आप सिंपलीफाई करेंगे, इट गिव्स 4 एंड 3 2 जा 6 एंड इसे और सिंपलीफाई करेंगे, इट गिव्स 2 upon 3. नाउ वी विल फाइंड b1 upon b2. So here the coefficient of y is 1 and in this case the coefficient of y is 3. So here a1 upon a2 जो है वो b1 upon b2 के इक्वल नहीं है. So they are representing intersecting lines और intersecting lines केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है क्योंकि intersecting lines एक पॉइंट में मिलती हैं. So these pair of lines are consistent. Question number 4. Which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. So आपको बताना है इनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंट के केस में सॉल्यूशन निकलता है एंड कौन सी इनकंसिस्टेंट है. तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकलता है. अगर कंसिस्टेंट होंगी, इफ कंसिस्टेंट, हमें उनका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ग्राफिकली सॉल्व करके हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करके उनका सॉल्यूशन निकालना है. तो आपकी पहली जो इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. तो उसके लिए हम निकालेंगे a1 अपॉन a2. तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट फर्स्ट वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 1 एंड सेकेंड वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 2. इसमें a1 अपॉन a2 की वैल्यू है 1 by 2. अब हम फाइंड करेंगे b1 अपॉन b2. तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है 1 एंड सेकेंड वाली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है 2. It also gives 1 by 2. Now we will check for c1 upon c2. So here the c1 is 5 and in the second equation आपका जो c2 है वो है आपका 10. It also gives 1 by 2. यहाँ पे a1 upon a2 आ रहा है, इक्वल आ रहा है b1 upon b2 के एंड दिस इज इक्वल टू c1 upon c2. यहाँ पे a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2 तीनों ही बराबर आ रहे हैं. तो इस केस में जो लाइंस होंगी वो आपकी ओवरलैपिंग होगी या आप कह सकते हैं कोइंसिडेंट लाइंस. तो कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग लाइंस का सॉल्यूशन निकलता है, इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपकी कंसिस्टेंट होंगी.
नाउ हम इन इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करके उनका सॉल्यूशन निकालेंगे. सो फॉर दैट आई विल टेक फर्स्ट इक्वेशन. तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन नोट कर लिया. नाउ अब क्या करेंगे आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ y. x इज इक्वल टू 5 माइनस y. आप यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे. देखिए अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू लेते हैं x एंड y, अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 रखने पे x की वैल्यू आएगी 5 माइनस 1 विच इज 4. अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू 2 रखने पे x की वैल्यू आएगी आपकी 3. एंड अगर यहाँ पे आप y की वैल्यू 3 रखेंगे तो उस केस में x की वैल्यू आएगी आपकी 2. तो नाउ वी विल टेक सेकेंड इक्वेशन. तो हम सेकेंड इक्वेशन लेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. और आप यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y. तो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y एंड नाउ x इज इक्वल टू 10 minus 2y upon 2. Now we have to draw one table here. So if I put value of y 1, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो उस केस में देखिए y की वैल्यू 1 रखने पे क्या हुआ, 2 1 ज़ा 2, 10 माइनस 2 8, और 8 का हाफ करेंगे तो आएगा आपका 4. ओके. अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू रखता हूँ 2, सो 2 2 ज़ा 4, 10 माइनस 4 6, एंड 6 का हाफ करेंगे तो 3 आएगा. तो y की वैल्यू 2 रखने पे x की वैल्यू आ रही है आपकी 3. इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू 3 रखते हैं तो 2 3 ज़ा 6, 10 माइनस 6, 10 में से आप 6 माइनस करेंगे, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 गिव्स 4. तो 10 में से जब 6 माइनस करेंगे 4 आएगा, एंड 4 का हाफ करेंगे तो आपको 2 मिलेगा. तो y की वैल्यू 3 रखने पे x की वैल्यू आ रही है आपकी 2. तो आप इन इक्वेशंस को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे. अब आप इस इक्वेशन के पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर में. तो फर्स्ट वाले केस में आपका x है 4 एंड y है 1. x इज 4 हेयर, x4 आपका यहाँ पे है एंड y 1. दिस इज 4 1. नाउ x is 3 and y is 2. x is 3 is here and y 2. This represent 3 2. So ये पॉइंट आपका 3 2 होगा. Now the third point है आपका 2 3. x is 2 and y is 3. x is 2 and y is 3. So this represent 2 3. तो अब आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे जो इन तीनों पॉइंट से पास होगी. सो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है. तो दिस लाइन रिप्रेजेंट द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. तो अब आप सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करोगे ग्राफ पेपर में. x is 4 and y is 1. So this represent the same point 4 1, and now x is 2 and y is 3. x is 3 x is 3 and y is 2. x is 3 and y is 2. So this point represent 3 2, and the third point is 2 3. So third point क्या पे कोऑर्डिनेट है 2 3. तो यहाँ पे x है 2 और y है 3. तो x2 आपका यहाँ पे and y is 3. So this represent 2 3. So again you have to join these 3 points. ठीक है, टू फॉर्म अ लाइन. तो आपने ज्वाइन किया इन तीनों पॉइंट्स को, और इस केस में दोनों लाइंस आपस में ओवरलैप करेंगे. सो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दीज टू इक्वेशंस. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. x minus y is equal to 8, and the second equation is 3x minus 3y is equal to 16. So first of all we will find a1 upon a2, means the ratio of coefficient of x. In the first equation, coefficient of x is 1. In the second equation, coefficient of x is 2. Now we will find b1 upon b2. Here, the coefficient of x in the first equation, the coefficient of y is minus 1. And in the second equation, the coefficient of y is minus 3. This also gives 1 by 3. Now we will find c1 upon c2. In the first equation, constant term is 8, and in the second equation,
constant term is 16, and this gives 1 by 2. So we have noticed that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but this is not equal to c1 upon c2. So this gives the condition of parallel lines. तो ये आपकी parallel lines की condition होती है, and parallel lines आपकी inconsistent होती हैं क्योंकि वो कहीं नहीं मिलती हैं. तो इस केस में intersection point नहीं find कर सकते हो. So intersection point find नहीं होगा, इसलिए इन equations को आप graphically represent करोगे तो इनका solution भी नहीं होगा. So these pair of lines are inconsistent. This is the third part of question number 4. 2x plus y minus 6 is equal to 0, and our second equation is 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. So सबसे पहले आप ये पता लगाइए कि given pair of linear equations आपकी consistent है या inconsistent है. तो first of all we will find a1 upon a2. a1 upon a2, that means coefficient of x in the first equation is 2, and coefficient of x in the second equation is 4. So a1 upon a2 gives 1 by 2. Now we will find b1 upon b2. The coefficient of y in the first equation is 1, and the coefficient of y in the second equation is minus 2. So here a1 upon a2 is 1 by 2, and b1 upon b2 is 1 upon minus 2. So a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. So this is the condition for intersecting lines. So intersecting lines are consistent. Now we will solve these two equations graphically. तो हम equations को अब graphically solve करेंगे. For that I will find the value of y in terms of x. तो मैं y की value x के terms में find करूँगा. I am taking first equation. मैं first equation को लेता हूँ 2x plus y minus 6 is equal to 0. So यहाँ पे मैं y की value find करूँगा तो y की value आएगी आपकी 6 minus 2x. Okay, now I have to draw one table. फिर देखिए मैं फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे x की वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ 0. अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो उस केस में y की वैल्यू क्या आएगी? तो 6 minus 2 into 0 gives 0. So 6 minus 0 gives 6. तो अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू रखी 0 तो उस केस में 6 की वैल्यू आ रही है आपकी y की वैल्यू आ रही है आपकी 6. ओके, अगर यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे x की वैल्यू रखता हूँ 1, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो उस केस में y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4. y 2 1 जा 2 और 6 minus 2 gives 4. तो x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू आ रही है आपकी 4. अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू रखता हूँ 2 तो 2 2 जा 4 and 6 minus 4, 6 minus 4 gives 2. तो अगर मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो 2 2 जा 4 और 6 minus 4 gives 2. इस तरीके से हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए 3 पॉइंट्स फाइंड कर लिए. अब हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके उसके लिए भी 3 पॉइंट्स फाइंड करेंगे. और सेकेंड इक्वेशन इज 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. So first of all I will separate y from here. So 4x minus 4 is equal to 2y. 4x minus 4 upon 2 gives y. I have find the value of y in terms of x. Now I have to draw one table. देखिए अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू इस जगह पे अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 4 1 जा 4 and 4 minus 4 gives 0 and 0 upon something is always 0. तो x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू आएगी 0. अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू आएगी आपकी 0. अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं इस जगह पे x की वैल्यू रखता हूँ 2, so 4 2 जा 8 and 8 minus 4, 8 minus 4 gives 4 and 4 का फिर मैं हाफ करूंगा तो क्या आएगा 2 मिलेगा. So x की वैल्यू 2 रखने पे अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखता हूँ so 4 2 जा 8, 8 minus 4 is 4 and 4 का हाफ फिर करेंगे तो 4 का हाफ होगा 2. So x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू 2 आ रही है. अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ 3, if I put value of x is equal to 3, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखता हूँ so 4 3 जा 12, 12 minus 4 करेंगे 8 और 8 का हाफ करेंगे तो 4 आएगा. तो अगर मैंने x की वैल्यू 3 रखी तो उस केस में y की वैल्यू आ रही है आपकी 4. Now we will plot these points on graph paper. We will represent first equation graphically.
So for that we have to plot the points for the first equation. So first point के coordinate है 0,6, x is 0 and y is 6. So x is 0 is here, x आपका 0 यहाँ पे होगा and y 6. This is 0,6. इस point को आप mark कर लेंगे 0,6. Second point है आपका 1,4, x is 1 and y is 4. So x is 1 here and 4. So 1,4. So this point represent 1,4. इसको भी आप mark कर लेंगे 1,4. Now our third point is 2,2. X is 2 and y is 2. So x is 2 here and y is 2. So this point represent 2,2. अब आप इन तीनों पॉइंट से पास होती एक लाइन ड्रॉ करोगे और जो ये लाइन है ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे 2x plus y is equal to 6. अब आप सेकेंड इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे. For that you have to plot first point which is 1,0. So 1,0 is here, x is 1 and y is 0. Okay, x is 1 and y is 0 here. Now our second point is 2,2. So this is 2,2, x is 2 and y is 2. इस पॉइंट को भी आप प्लॉट करके मार्क कर लेंगे. Now third point is x is 3 and y is 4. X is 3 here, x is 3 and y is 4. So this point represent 3,4. Now you have to draw a line passing these 3 points. So ये line है, it is representing equation 4x minus 2y is equal to 4. So point of intersection दोनों लाइन का solution होगा. तो ये दोनों lines कहाँ पे मिल रही है 2,2. So solution of these two equation is 2,2. X की value 2 and y is equal to is a solution of these two equation. Solution of these two equation is equal to x is equal to and y is equal to 2. This is the fourth part of question number 4. 2x minus 2y minus 2 is equal to 0 and 4x minus 4y minus 5 is equal to 0. So first of all, we'll check whether the given pair of equations are consistent or inconsistent. For that, we'll find a1 upon a2, means ratio of coefficient of x. So in the first equation, coefficient of x is 2 and in the second equation, coefficient of x is 4. So this gives 1 by 2. Now we will find b1 upon b2. Coefficient of y in the first equation is minus 2 and coefficient of y in the second equation is minus 4. This also gives 1 by 2. Now we will find c1 upon c2. In the first equation, constant term is minus 2 and in the second equation, constant term is minus 5. So this gives 2 by 5. Here we have found that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but this is not equal to c1 upon c2. So this is the condition for parallel lines, and in case of parallel lines, we do not have any solution. So the given pair of equations are inconsistent. So these equations are inconsistent, so we can't find the solution of these two equations graphically. Now question number 5. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width. Find the dimension of the garden. एक रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ जिसकी लेंथ रेक्टेंगुलर लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से और हाफ ऑफ पेरीमीटर है आपका 36. पेरीमीटर का हाफ है 36 एंड लेंथ जो है रेक्टेंगुलर गार्डन की 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से. तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी वाई. आप रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ को y मान लीजिए. लेट लेंथ ऑफ garden be y, okay, and its width be x. देखिए रेक्टेंगुलर गार्डन की आपने लेंथ मान ली y और विड्थ है आपकी x. सो केस फर्स्ट में अगर हम देखें यहाँ पे लिखा है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. लेंथ जो है 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंथ है आपकी y इट इज 4 मोर देन विड्थ x प्लस 4. इसको आप इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. यहाँ पे इट गिव्स x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0.
तो k सेकंड की अगर हम बात करें, k सेकंड में यहाँ लिखा है कि हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। तो पेरीमीटर का हाफ ऑफ पेरीमीटर को मैं p से लिख रहा हूँ, हाफ ऑफ पेरीमीटर इज गिवन 36। half of perimeter, we know that perimeter of a rectangle garden is 2, length plus breadth, length is y and breadth is x, this is equal to 36। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, it gives y plus x minus 36 is equal to 0। so ये आपकी सेकंड इक्वेशन है and this is our first equation। so दोनों ही इक्वेशंस को आप पॉइंट्स फाइंड करेंगे। अगर आप सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ x, then it gives 36 minus x and we have to find the value of y in terms of x, so for this equation y is equal to x plus 4। तो यहाँ पे मैंने टेबल्स बना ली हैं। देखिए अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन में यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू आएगी 0 प्लस 4। x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू आ रही है आपकी 4। अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू 8 रखता हूँ, इफ आई पुट वैल्यू ऑफ x हियर 8, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 8 रखता हूँ तो उस केस में y की वैल्यू आएगी आपकी 8 प्लस 4 12। एंड अगर थर्ड केस में यहाँ पे मैं x की वैल्यू रखता हूँ 12, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 12 रखता हूँ उस केस में y की वैल्यू क्या आएगी 12 प्लस 4 16। x की वैल्यू 12 रखने पे यहाँ पे वैल्यू आ रही है आपकी 16। So by this way you have find the coordinate of 3 point। Now we will find the coordinate of 3 point for the second equation। अगर आप सेकंड इक्वेशन में y की x की वैल्यू रखेंगे 0, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हैं तो उस केस में y की वैल्यू होगी 36 माइनस 0 मीन्स 36। तो अगर आपने यहाँ पे x की वैल्यू रखी 0, so it gives value of y 36। अगर इस सेकंड इक्वेशन में x की जगह यहाँ पे x की जगह अगर आप रखेंगे 36, अगर यहाँ पे आप x की जगह 36 रख देते हैं तो y की वैल्यू है, अगर आपने x की वैल्यू रखी 36 तो यहाँ पे y की वैल्यू आएगी आपकी 0। 36 माइनस 36 गिव्स 0। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 16 रखते हैं, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 16 रखता हूँ तो इट गिव्स 36 माइनस 16। 36 में 16 माइनस करें क्या मिलेगा 20। अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू रखी 16 तो y की वैल्यू आ रही है मेरी 20। अब इन पॉइंट्स को आप ग्राफ में प्लॉट करके दो लाइंस फॉर्म करेंगे। Now we will represent the points of the first equation on graph paper। So I have taken a graph paper। In this 1 unit represent 4 meter। इसमें 1 unit जो है 4 meter को represent कर रहा है। That means this is 4 and then 8, 12, 16, 20 and so on। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट देखें, it's 0, 4, x is 0 and y is 4। So x 0 is here and y 4। So we'll mark this point as 0, 4। The coordinate of second point is 8, 12। X is 8 and y is 12। So this is 4 and this is 8। 8 on x-axis and 12 on y-axis। So 8, 12। So this point represents 8, 12। We will mark this point as 8, 12। Now the coordinate of the third point is 12, 16। So x is 12, this is 12 and y is 16। So this is 16। So this point represents 12, 16। So we'll mark this point। Now we'll draw a line passing these 3 points। इन तीनों पॉइंट से पास होती हुई हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। So this line represent equation y minus x is equal to 4। Now we will plot the point for second equation। So for that, first of all we have to plot the first point and the coordinate of first point is 0, 36। So first point की coordinate is 0, 36। x is 0 and y is 36। x is 0 here and y 36 here। इस पॉइंट को आप मार्क कर लेंगे 0, 36। The coordinate of second point is 36, 0। x is 36 and y is 0। So x is 36 here and y 0 यहाँ पे लाई करेगा। 36, 0 आपका x एक्सिस में लाई करेगा। तो 36, 0 को आप मार्क कर लेंगे। एक और पॉइंट चेक कर लेते हैं 16, 20। ओके, तो x है आपका 16 and y है 20। So this is 12 and this is 16। 16 and y is 20। So here we have 20। So 16, 20। So we'll mark this point as 16, 20।
We have noticed that intersection point of these two lines, ये दोनों जो lines है इनका intersection point कहाँ पे है 16, 20. So 16, 20 is a solution of these two equations. तो 16, 20 दोनों equations का solution होगा. तो आपने पढ़ा था कि intersection point दोनों equations का जो intersection point होता है वो solution होता है. तो यहाँ पे आपने length मानी थी starting में y and y जो है आपका वो है 20. So आपका this is x and this is y, तो y है आपका 20, length is equal to y is equal to 20 and आपकी width आपने x consider की थी, so यहाँ पे x है आपका 16. So इस केस में इस rectangle गार्डन की जो लेंथ है वो है आपकी 20 and width है आपकी 16. Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is, in the first case it is intersecting, in the second case parallel lines, and in the third case coincident lines. So here one linear equation is given, एक linear equation आपको यहाँ दी गई है, आपको एक दूसरी linear equation बतानी है जो फर्स्ट केस में इंटरसेक्टिंग होगी, फिर आप एक दूसरी linear equation बताओगे जो अब इसके साथ पैरेलल लाइंस फॉर्म करेगी, एंड थर्ड केस में आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बताना है जो इस इक्वेशन के साथ कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी. तो हमें पता है कि अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है उस केस में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. आप दूसरी इक्वेशन इस तरीके से लोगे कि a1/a2 मीन्स x के कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर नहीं आना चाहिए y के कोफिशिएंट्स के रेशियो के. इस केस में देयर आर इनफाइनाइट लाइंस, बहुत सारी लाइंस मिल जाएंगी आपको जो इस लाइन के पैरेलल होगी. सो एक एक लाइन की इक्वेशन मैंने यहाँ पे रख दी है 2x plus 5y minus 10 is equal to 0. अगर मैं यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में a1/a2 निकालता हूँ तो इस केस में a1/a2 आएगा आपका 1, एंड अगर मैं b1/b2 निकालूंगा इट गिव्स 3/5. सो a1/a2 is not equal to b1/b2, so this gives the equation of intersecting lines. तो इन सेकेंड केस आपको दूसरी इक्वेशन देनी है सच दैट दीज टू इक्वेशंस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस. तो एक दूसरी इक्वेशन देनी है जिससे ये लाइन और जो नई इक्वेशन की लाइन होगी वो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करें. तो हमें पता है फॉर पैरेलल लाइंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2. तो यहाँ पे मैंने पैरेलल लाइन की कंडीशन की लाइन लिख दी है. इट्स 4x plus 6y minus 7 is equal to 0. if I find a1/a2, अगर मैं a1/a2 की वैल्यू निकालता हूँ so it gives 2/4. so 2/4 की वैल्यू आएगी 1/2. now I will find b1/b2, that means the ratio of coefficient of y which is 3/6. so 3/6 also gives 1/2. so a1/a2 is equal to b1/b2. now I will find the ratio of the constant term. so the ratio of constant term will be 8/7. minus 8 upon minus 7 gives 8/7. So a1/a2 is giving 1/2. b1/b2 is also giving 1/2, but it is not equal to c1/c2 which is 8/7. So this gives the condition of parallel lines. तो ये दोनों इक्वेशंस होगी पैरेलल लाइंस की कंडीशन को शो करेंगे. थर्ड केस में आपको कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करना है. तो हमें पता है फॉर कोइंसिडेंट लाइंस a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2. तो कोइंसिडेंट लाइन के केस में x के कोएफिशिएंट्स का रेशियो, y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो सेम होता है. तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन जो ये गिवन है इस इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके एक दूसरी इक्वेशन फॉर्म कर ली. इससे मुझे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का तीनों का रेशियो सेम मिलेगा. सो इट इज 6x plus 9y minus 24. So if I find a1/a2, so it's 2/6. 2/6 gives 1/3. If I find b1/b2, अगर मैं b1/b2 की वैल्यू फाइंड करूंगा तो उसकी वैल्यू होगी 3/9. So 3/9 also gives 1/3. And now c1/c2, it's minus 8/-24. 8 1s 8, 8 3 24. It also gives 1/3. So a1/a2, b1/b2 and c1/c2 all three are equal. So this is the condition for coincident or overlapping lines. Now this is seventh and the last question of exercise 3.2. Draw the graph of the equation x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region.
तो आपको इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और इन दोनों इक्वेशंस और जो एक्स एक्सिस है उसके बीच में जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स के आपको वर्टिसेस बताने हैं और उस ट्राइंगल रीजन को आपको शेड भी करना है। तो आप सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। Now you will find the value of x in terms of y. So it gives x is equal to 1 y minus 1. Okay, so this is our first equation. यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे in terms of y. For that you have to draw one table. अगर यहाँ पे आप इस इक्वेशन में y की वैल्यू रखते हैं 1, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो x की वैल्यू आएगी 1 माइनस 1 0। तो y की वैल्यू 1 रखने पे x की वैल्यू आ रही है 0। अगर यहाँ पे मैं इस इक्वेशन में y की वैल्यू रखूंगा 2 तो x की वैल्यू आएगी 2 माइनस 1 1। y की वैल्यू 2 रखने पे x की वैल्यू 1 आएगी। सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू 3 रखता हूँ तो x की वैल्यू आएगी आपकी 2। आपने इस इक्वेशन के 3 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। इसी तरीके से हम जो सेकंड इक्वेशन है इस इक्वेशन के भी 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। विल टेक दिस इक्वेशन 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Now I will find the value of x in terms of y. So it gives 3x is equal to 12 minus 2y and the value of x will be 12 minus 2y upon 3. Now I have to draw one table. अगर इस इक्वेशन में y की वैल्यू मैं 0 रख देता हूँ तो 12 माइनस 0 गिव्स 12 अपॉन 3। देखिए ये पार्ट तो 0 हो जाएगा 0 रखने पे। सो 12 अपॉन 3 गिव्स 4। तो अगर आपने यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू आ रही है आपकी 4। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे 3, अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू 3 रखेंगे सो 2 3 जा 6, सो 12 माइनस 6 गिव्स 6 एंड 6 अपॉन 3 गिव्स 2। अगर आपने यहाँ पे y की वैल्यू रखी 3, अगर आपने y की वैल्यू 3 रखी तो आपकी x की वैल्यू आ रही है आपकी 2। इसी तरीके से अगर y की वैल्यू आप 6 रख देते हैं, अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू 6 रखेंगे सो 2 6 are 12 एंड 12 माइनस 12 गिव 0 एंड 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0। तो अगर आपने यहाँ पे y की वैल्यू 6 रखी तो y की वैल्यू 6 रखने पे x की वैल्यू आ रही है आपकी 0। अब आप इन दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करेंगे। Show these equations on graph. For that we have to plot the coordinate of these points. The coordinate of first point is 0 comma 1, x is 1, x is 0 and y is 1. So here we have x is 0 and y is 1. We'll mark this point as 0 comma 1. Now the coordinate of second point जो coordinate है आपके 1 comma 2, x है आपका 1, y है 2. So x is 1 here, y 2. So ये point आपका 1 comma 2 है। इस पॉइंट को आप मार्क कर लेंगे 1 comma 2। थर्ड पॉइंट है आपका 2 comma 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड पॉइंट इज 2 comma 3। x है आपका 2, x is 2 and y is 3. So x is 2 here, 1 2 and y is 3. So this point represent 2 comma 3. Now we have to draw one line passing these 3 points. So इन तीनों पॉइंट से पास होती एक लाइन ड्रॉ करेंगे and this line represent the equation x minus y plus 1 is equal to 0. Now we have to draw the line for the second equation. For that we will plot these points on the graph paper. So first point is 4 comma 0, x is 4 and y is 0. So this point lies on x-axis 4 comma 0. We'll mark this point as 4 comma 0. Now coordinate of second point is 2 comma 3, x is 2 and y is 3. So here we have x is equal to 2 and y is equal to 3. So this point represent 2 comma 3. We'll mark this point as 2 comma 3. Now the coordinate of third point is 0 comma 6. X is 0 and y is 6. 0 comma 6 lies on y axis, so 0 comma 6. So we'll mark this point as 0 comma 6. तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है इन दोनों लाइंस और x एक्सिस के बीच में, दोनों लाइंस और x एक्सिस के बीच में जो ट्राइंगुलर रीजन बन रहा है, इस ट्राइंगल रीजन के आपको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट बताने हैं, इसके कॉर्नर्स के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो फर्स्ट जो आपका वर्टिक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स है 2 comma 3। सेकेंड आपका जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट है आपके -1 comma 0 एंड जो आपका थर्ड वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट है 4 comma 0। और आपको इस ट्राइंगल रीजन को शेड भी करना है तो आप इस ट्राइंगल रीजन को शेड कर देंगे।